Hello, my dear students. In this video, we are going to explore the world of enzymes. So, before we go into detail, we need to understand why these enzymes are so important to us. So, have you ever wondered how your food get digested so quickly, even though it seems like a complex chemical soup? So, my dear student, the answer lies in these magical proteins which are known as enzymes. So, enzymes are not just any biomolecules, they are the biocatalyst. They make life happen faster. Without them, even simple reaction in your body would take hours, days, or even years to occur. Starting from DNA replication to digestion, from respiration to muscle contraction, everywhere enzymes are present. And when it comes to NEET, so enzyme based questions are a hot favorite, whether it's enzyme action, classification, inhibition, or kinetics. So let's just understand. So almost all enzymes are proteins except ribozymes, because ribozymes, these are the RNA or nucleic acid. The enzyme term was coined by Kuhne, and the first enzyme that was zymase. Zymase was obtained from the yeast, and Louis Pasteur was the first who discovered the first enzyme. As far as this the definition of enzyme is concerned, so it is a biocatalyst synthesized by the living cells. So they are basically synthesized only in the living cells. According to Dixon and Webb, enzymes are defined as a protein with catalytic properties due to its power of specific activation. So basically, these enzymes are, most the enzymes are tertiary or quaternary globular proteins. Globular proteins, right? They have 3D structure, and this 3D structure is essential for functionality and specificity. What is the meaning of specificity? Basically, the enzymes are specific to the substrate. Now the structure of enzyme. हमने प्रोटीन वाला जब पार्ट कंप्लीट किया था तो हमने वहां पर देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. If I talk about the primary structure, so basically it shows amino acid sequence of protein, right? So this is the primary structure where these amino acids are assembled. And via primary structure, what we can see, we can easily find the sequence of amino acids. So this is how the amino acids are arranged. तो primary structure को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं. Whereas in secondary structure, यहाँ पर यही जो primary structure है, इसने helical का formation कर लिया है, right? हमने जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि किस तरह से हेलिक्स फॉर्म होता है, तो हमने वहां पे देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, whereas in secondary structure hydrogen bond along with peptide bonds are found, right? नाउ कम्स टर्सरी स्ट्रक्चर. तो टर्सरी स्ट्रक्चर में यहां पर बैकबोन ऑफ प्रोटीन चेन fold upon itself. So this is how it fold upon itself and it makes the crevices. So this is the N terminal and the C terminal. तो अगर हम crevices की बात करते हैं, suppose these are the pockets or the crevices. So these are crevices or the pockets. So basically, tertiary structure, it fold upon itself and crisscrosses, hence many pockets or crevices are formed. इन्हीं crevices को हम बोल देते हैं active site. अब ये जो active site है, यही किसी भी reaction को catalyze करती है और high rate में products का formation होता है. अब ये जो active sites है बेटा, it can bind either with substrate or competitive inhibitor. तो suppose this is the enzyme, और यहाँ पर ये जो पॉकेट है ये कहलाती है इसकी एक्टिव साइट. दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव साइट, राइट? और मान लेते हैं कि ये अपने पास कोई सबस्ट्रेट है. दिस इज द सबस्ट्रेट. नाउ दिस सबस्ट्रेट इज गोइंग टू बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, राइट? एंड लेटर ऑन इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट. बाद में इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द प्रोडक्ट. तो इस तरह से कोई भी जो रिएक्शन है वो परफॉर्म की जाती है. Now the types of catalyst. So there are two types of catalyst. One is organic catalyst, and second is inorganic catalyst. Organic catalyst, they are known as enzymes, क्योंकि अभी हमने बात की थी ऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट ये लैबोरेटरी वगैरह में यूज किए जाते हैं और
Inorganic catalysts are more efficient at high temperature and pressure. हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेयर एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो दे गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो जाता है तो ये डीनेचर हो जाते हैं, राइट. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, right, thermophilic organisms, they can withstand with 80 degree celsius to 90 degree celsius. The examples of these thermophilic organisms are archaebacteria and thermus aquaticus. So basically these archaebacteria can survive in the harsh environmental conditions, right. Let's suppose यहाँ पर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स. तो अगर हम देखते हैं, सपोज अगर हम ये हमारी समुद्र की सरफेस है, दिस इज द सी सरफेस, राइट. तो यहाँ पर सी सरफेस पे सर्टेन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, राइट. सो दीज आर दी बैक्टीरिया एंड दिस इज द अर्थ क्रस्ट, राइट. यहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होगा, एट हाई टेम्परेचर. So these are known as hot vents. Now Thermus aquaticus. So Thermus aquaticus, this contain tag polymerase. This contain tag polymerase enzyme. और ये जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम है ये पीसीआर में यूज किया जाता है. पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जहां पर हम थोड़े से डीएनए के सेगमेंट से या फिर जीन के सेगमेंट से हम मल्टीपल उसकी कॉपीज बना सकते हैं. तो वहां पर डीनेचुरेशन, रिमेंबर वहां पे डीनेचुरेशन करने के लिए हमें उसको 90 डिग्री सेल्सियस तक भी लेकर के जाना पड़ता है. तो इस तरह के एंजाइम्स हमें चाहिए जो इतने हाई टेम्परेचर पर भी विदस्टैंड कर सके. तो थर्मस एक्वाटिकस से हम एक एंजाइम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैग पॉलीमरेज, राइट. एंड इट शोज थर्मल स्टेबिलिटी. व्हाट डज इट मीन? हाई टेम्परेचर को भी ये विदस्टैंड कर सकता है. विदस्टैंड करने का मतलब है कि उस हाई टेम्परेचर पर भी ये एक्टिवेटेड रहेगा. So basically these are some differences between the enzyme and inorganic catalyst. So enzymes, they are the biocatalysts which are found in the living body only, whereas inorganic catalysts are used in the laboratory. Enzymes are highly specific, whereas inorganic catalysts are less specific. Enzymes are highly efficient, whereas inorganic catalysts are less efficient. Enzymes are proteinaceous, right? Most of the enzymes are proteinaceous and proteins are the organic components. Why they are the organic compounds? Because they are found in the living body. Whereas inorganic catalyst, right? They are inorganic because they can be found outside the living body. Thermolabile. Enzymes are thermolabile. What does it mean? Thermolabile means they are temperature sensitive. They are temperature sensitive. So as we have discussed in the previous slide कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ा या फिर कम हुआ, राइट, तो वहां पर एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द हाई टेम्परेचर, तो एट हाई टेम्परेचर एंजाइम गेट डीनेचर्ड, वेयर एज at low temperature enzyme becomes inactive. As far as the inorganic catalysts are concerned, in terms of temperature, so they are thermostable, so they can withstand at high temperature. For example, they can the reaction can take place at 400 to 450 degree celsius, तो high temperature पर भी ये survive कर सकता है. Now there are two types of enzyme. One is exonuclease and endonuclease on the basis of mode of their action. तो exonuclease as the name suggests is ये सेल के बाहर काम करते हैं. जिस भी सेल के अंदर या ग्लैंड के अंदर ये बने होंगे ये बाहर आकर के काम करते हैं. Endo enzymes, they are functional inside the cell. So exoenzymes, they are functional outside the cell in the extracellular segment. Examples are digestive enzyme and respiratory enzymes, right? If I take example of digestive enzyme like pepsin, so pepsin, it acts on the food, right, in the stomach. So respiratory enzyme like respiratory enzyme, you can take the example of carbonic anhydrase. So carbonic anhydrase, it is also present in the plasma. Okay. It is present inside the RBC as well as in the plasma. Next, endoenzymes, they are functional only inside the cell. Example, Krebs cycle and glycolysis pathway. So glycolysis pathway, which is a 10-step process where certain enzymes are required to break down the glucose molecule into the pyruvic acid. तो कोई भी जो केमिकल कंपाउंड होता है, इट मे अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस.
One is physical reaction or physical change. Second is chemical reaction or chemical change. फिजिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज में कभी भी ना तो पुराना बॉन्ड टूटता है ना ही नया बॉन्ड बनता है. सिर्फ इसमें या तो शेप चेंज होगी या तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा. लेट्स टेक द एग्जांपल. राइट, समझते हैं इस चीज को. फॉर एग्जांपल वी हैव आइस. तो आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में आफ्टर मेल्टिंग, और वाटर आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट इनटू द वेपर. तो यहाँ पर आइस, दिस इज द सॉलिड स्टेट, वाटर दिस इज लिक्विड स्टेट, whereas the vapor this is the gaseous state. राइट, तो इस तरह से हमने देखा कि सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है. नाउ केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज में यहाँ पर जो पुराने बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. चलिए इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं. एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं. राइट, सपोज द बेरियम हाइड्रोक्साइड is react with H2SO4 and it gives BaSO4 plus two water molecules. Two water molecules. So this is the inorganic chemical reaction. Why it is called inorganic? क्योंकि ये laboratory में perform हो रही है. Let's take the another example from the organic chemical reaction. तो यहाँ पर आप बात कर सकते हो hydrolysis of starch. Right? Starch is a polysaccharide. तो इसका जो मोनोमर होगा that is glucose. तो hydrolysis of starch into glucose. Okay. चलिए अब बात कर लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की. तो रेट क्या होता है? सो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम. सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी. दैट मीन्स कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. तो रेट जो होता है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. कि रेट मतलब स्पीड, और इसमें कोई भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी. बट अगर हम रेट के साथ, दैट मीन्स स्पीड के साथ, ये भी डिफाइन कर दे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, तो इट इज नोन एज वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कैसी है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये आप फिजिक्स में पढ़ते हो. तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड होती है. अब हम डायरेक्शन की बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एंजाइम की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी. तो एंजाइम जो है दिस कैन स्पीड अप रिएक्शन आइदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन. जैसे कि यहाँ पर हेक्सोज है, राइट. तो हेक्सोज यहाँ पर सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है. तो हेक्सोज इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज इट कन्वर्ट्स इनटू टू ट्राइओजेस. राइट, टू ट्राइओजेस, दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे इसके, क्योंकि यहाँ पर हेक्सोज है, दिस इज सिक्स कार्बन, और टू ट्राइओजेस दिस इज थ्री कार्बन. राइट, इट इज ऑफ दिस इज ऑफ थ्री कार्बन कंटेनिंग. तो यहाँ पर अभी जो टू ट्राइओजेस है, राइट, ये टू ट्राइओजेस इन द presence of same enzyme that is aldolase, it will again convert into the hexose. राइट, तो इस तरह से ये रिवर्सिबिलिटी कहलाती है. यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और प्रोडक्ट अब सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहे हैं और उससे वो वापस से अपने ओरिजिनल उसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज दी हेक्सोज. राइट, आइए अब हम देख लेते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन catalyzed is a very high when compared to that of uncatalyzed one. तो मेरा यहाँ पर ये कहने का मतलब है catalyzed, क्योंकि हमने शुरुआत में बात की थी कि enzymes are known as biocatalyst. तो कोई भी अगर रिएक्शन है वो परफॉर्म हो रही है, इन केस अगर वहां पर एंजाइम प्रेजेंट है तो वो बहुत ही हाई स्पीड पे होती है, हाई रेट में होगी. और अगर वो अनकैटलाइज्ड है, विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है, तो वहां पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कम बनेंगे. तो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन आर sorry influenced by temperature among other factors. There are certain more factors, लेकिन temperature is one of them. तो physical और chemical reaction this is influenced by the temperature. अब temperature के regarding यहाँ पर एक thumb rule है. The thumb rule is the rate of reaction doubles or decrease to half for every 10 degree Celsius change in temperature in either direction. क्या मतलब है इसका समझते हैं. मान लीजिए कि कोई reaction है वो अभी चल रही है. Let's suppose this is just the assumption, right? तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं. मान लीजिए कोई जो रिएक्शन है वो चल रही है अभी 20 डिग्री सेल्सियस पर इन द स्पीड ऑफ एक्स. ओके, तो अगर मैं इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कम कर दूं, दैट मीन्स अगर मैंने इसका टेम्परेचर कर दिया, माइनस कर दिया यहाँ से, तो 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये जो स्पीड है ये हो जाती है एक्स बाय टू. दैट मीन्स कि जो प्रीवियस था उसकी जस्ट हाफ हो गई. और अगर मैंने इनिशियल वाले में जो शुरुआती था उसी में 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, ठीक है, दैट मीन्स मैंने कर दिया इस बार
30 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो रिएक्शन है ये हो जाती है डबल। तो यहाँ पर हो रही है ये हाफ और यहाँ पर हो रही है ये डबल। सो दिस इज दी थंब रूल। तो जनरल थंब रूल हमने समझा, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स और डिक्रीज टू हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर इन आइदर डायरेक्शन। आइए, ये जो बात है जो हमने की थी, द रेट ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन इज वेरी हाई व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन, तो इसका एग्जांपल लेके अभी हम समझेंगे थोड़ी देर में। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। अब मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, हम सबको पता है कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, दीज आर द डिफाइनिंग फीचर्स। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में कुछ ब्रेक डाउन होगा, नया कुछ फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह से कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों चलते रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे की, दैट मीन्स किसी सबस्ट्रेट से फाइनल प्रोडक्ट का बनना। ओके, तो वहां पर बहुत सारी सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शंस होती है। तो दिस इज अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन इन विच ईच स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम्स। इसे भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक कंडीशन। दिस इज द एरोबिक कंडीशन। ओके, aerobic. This is the aerobic condition. So it will convert into C3H4O3. That means this is the pyruvic acid along with two water molecules. अच्छा, तो यही हमने यहाँ पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा था और इसी को हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम कहेंगे एरोबिक कंडीशन। तो एरोबिक कंडीशन में तो ये फॉर्म करता है पायरुविक एसिड, लेकिन एन एरोबिक कंडीशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है हमारी स्केलेटल मसल में, तब वो फॉर्म करता है लैक्टिक एसिड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कंडीशन पर डिपेंड कर रहे हैं कि किस तरह की कंडीशन है। उस तरह से ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात कर लेते हैं यीस्ट की। तो यीस्ट में यहाँ पर होता है फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन जो है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एन एरोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन कब होगा, जब एनरोबिक कंडीशन होगी। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इथेनॉल और अल्कोहल का। तो यहाँ पर हमने ये इन्फ्लुएंस निकाला इन सब रिएक्शंस के थ्रू कि दैट डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, राइट। तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज दी कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टी में हमें पता है कि जो एंजाइम है दीज आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। तो कैटालिटिकल प्रॉपर्टी में जो एंजाइम्स इट रिमेन्स अनचेंज्ड। तो एंजाइम कैसा रहता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन, राइट। एक चीज तो ये हो गई, जो भी रिएक्शन में कैटेलाइज करेगा उसके बाद भी जो एंजाइम है वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा। ये सिर्फ करता क्या है, इट ओनली स्पीड अप द रिएक्शन, अप द रेट ऑफ reaction rate of reaction, right, and it never changes the equilibrium of the reaction, never changes the equilibrium of reaction। अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी, क्योंकि हमने बात की थी एंजाइम्स आर रिएक्शन स्पेसिफिक, राइट। तो वन एंजाइम कैटलाइजेस ओनली वन स्पेसिफिक रिएक्शन और एक्ट्स ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, राइट। तो हमने क्या बात करी, इज स्पेसिफिक टू दिस इज स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट। ओके, अगर हम एग्जांपल लेते हैं लाइक सुक्रेज, राइट, इट कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ ओनली सुक्रोज। तो सुक्रेज जो एंजाइम है, जो सुक्रेज ये जो एंजाइम है, तो इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, सुक्रोज, राइट। तो इसका सुक्रोज को ये जो सुक्रेज है वो इसको हाइड्रोलाइज करेगा। ऑलराइट, तो इस तरह से ये हो गया इसका सबस्ट्रेट और ये हो गया इसका एंजाइम। तो एंजाइम आप देख रहे हो कि यहाँ पर एंजाइम का जो नाम है वो उसके सबस्ट्रेट के स्पेसिफिसिटी उसी के हिसाब से ही है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। नेक्स्ट आता है रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पर जो रिवर्सिबिलिटी का जो नेचर है, तो यहाँ पे हम पहले भी हम इस टॉपिक के बारे में बात कर चुके हैं कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है दिस कैन स्पीड अप अ पर्टिकुलर रिएक्शन आइदर इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये
फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है और इट कैन ब्रिंग द रिएक्शन इन बैकवर्ड, राइट। जैसे अभी हमने बात की थी एल्डोलेज एंजाइम को लेकर के, हमने अभी बात की थी, राइट। इट कन्वर्ट्स हेक्सोज इनटू टू ट्रायोजेस, और सेम ही जो एंजाइम है वो वन हेक्सोज से फॉर्म कर देता है टू ट्रायोजेस, राइट। तो ये दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। ये हमने अभी पिछले स्लाइड में ही बात की थी, इफ यू रिमेंबर। सी दिस इज दिस इज द एग्जांपल आई हैव टेकन, ठीक है। तो दिस इज द रिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट, enzymes are active in minute quantity. Enzymes are very active in extremely small quantities, right? The number of substrate molecule converted into product by one molecule of an enzyme in 1 minute. This is called turnover number. तो हमने यहाँ पर एक नया वर्ड समझा, that is called TON, which is turnover number, right? जो टिपिकल टर्नओवर नंबर होता है किसी भी एंजाइम का, वो वेरी करता है फ्रॉम 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 3 पर सेकेंड, राइट। तो एंजाइम एफिशिएंसी इज वेरी लो इन लाइसोजाइम। एक आपको बता देते हैं कि एंजाइम वैसे तो बहुत ज्यादा हाईली एफिशिएंट होते हैं, लेकिन लाइसोजाइम की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो एंजाइम्स क्योंकि दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, राइट, और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। लाइक इफ आई टॉक अबाउट द पेप्सिन, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज अराउंड 50,000 डाल्टन, ओके। ऐसे ही हम अगर बात करते हैं दैट इज परऑक्सीडेज, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा अराउंड 40,000 डाल्टन, क्योंकि हमने जब मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं तो हम उसको डाल्टन में मेजर करते हैं। देन कम्स द कोलॉइडल नेचर। तो एंजाइम्स आर कोलॉइडल इन नेचर ड्यू टू विच दे ऑक्यूपाई अ लार्ज सरफेस एरिया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। तो ये कैसे बेनिफिशियल होता है? occupies large surface area, right, during catalysis catalysis of reaction. Next जो point है that is called sensitivity. तो enzymes are heat sensitive, they are also pH sensitive, है ना, तो sensitive होते हैं, जिसको हमने बोला था thermolabile. So they are pH and temperature sensitive. That means कि अगर pH में या फिर टेम्परेचर में चेंज आया तो एंजाइम का जो एक्शन है, जो उसका प्रोडक्ट बनाने का जो स्पीड है, वो भी चेंज हो जाएगा। All right. So, my dear students, so far we have learned the nature of enzyme. Now, the question arises that how do enzymes bring about such high rate of chemical conversion? That means how the product formation takes place. So, this question we will be dealing in our next upcoming class. All right. Till then, take care of yourself and keep exploring the world of biology.